नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार sir, नमस्कार. कैसे हैं डॉक्टर साहब? I had one more meeting. I am in Jindal in Karnataka. Okay. I was rushing one after the other programs. Today is Yes, our yes. day. Yes, exactly. Okay. Thank you for allotting us the time, sir, today. Yes. Thank you very much. I think Dr. Ghazala, we can start. Yes, sir. Am I audible? Unmute कर लीजिए. Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes. Yes, audible, audible. Okay, sir. Salam and very good morning and namaskar to everyone. 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाई और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ. Today we are celebrating the occasion of IDY 2024 on the Yoga for Self and Society, स्वयं और समाज के लिए योग. And also to celebrate a decade of promoting yoga, we have organized this press meet. I welcome everyone. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई उपलब्धियां प्राप्त हुई, जिसका विवरण हमारे आज के अतिथिगण करेंगे. And for this, among us, we have our respected DGCCRUM, Dr. N. Zahir Ahmed Sahib. We have our esteemed guest speaker, Dr. Ishwar Baswa Reddy ji. He is a known figure and he has organized many IDYs when he is former director MDNIY. When he was in MDNIY, so he has vast experience in that and is a known face. आपका स्वागत करती हूँ मैं सर. And I welcome all the media persons who have joined us, who are kind enough to take time out और उन्होंने हमें join किया from reputed media houses से. और अपने सारे officers का मेरे साथ DDG मैडम हैं डॉक्टर नाहिद परवीन, उनका वेलकम करती हूँ. हमारे सीनियर ऑफिसर्स का वेलकम करती हूँ. यहाँ पर डॉक्टर आरपी मीना जी बैठे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन इंचार्ज, और सारे सीनियर ऑफिसर्स का. क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं इसकी एक प्रोसीडिंग्स की आउटलाइन दे देती हूँ कि पहले हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल सर एक प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें वो बताएंगे पिछले एक डिकेड की एक्टिविटीज़, उसमें हमने क्या क्या किया है. और उसके बाद हम अपने एस्टीम गेस्ट स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपने इनपुट्स और एक हमें ज्ञान प्राप्त करेंगे उनसे. हम वो योगा के एक्सपर्ट है हमारे बीच में. और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने डायरेक्टर जनरल सर से कि वो प्रेजेंटेशन एक करें जिसमें पिछले एक दशक में क्या प्राप्त किया है उसका एक स्नैपशॉट रिव्यू दे दीजिए सर. आपका स्वागत है. Thank you, Dr. Ghazala. Our distinguished expert and guest, Dr. Ishwar V. Baswa Reddy ji, former director, Morarji Desai National Institute of Yoga and Naturopathy. Our esteemed media friends, our colleagues from CCRUM and our colleagues from different peripheral institutions. Namaskar, Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. सबसे पहले let me express my heartfelt appreciations, compliments and congratulations to all of you on the happy occasion of International Yoga Day 2024 on the theme Yoga for Self and Society. Basically, the objective of holding this press conference online is that kindly excuse me that since I have been on my personal visit to Chennai, it was not possible to for me to address you in person. That's the reason we have requested to come online. Thank you very much for joining with us. ये actual जो purpose है तो objective है मंत्रालय, आयुष मंत्रालय का, तो सारे रिसर्च काउंसिल्स और सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं इस मैसेज को
हमारे मीडिया के मित्रों के जरिए आवाम तक जो है, लोगों तक जो है ये मैसेज को पहुंचाएं कि जो है योगा की जो है क्या जो है अब तक जो है गतिविधियां जो है सरकार की ओर से जो है पिछले 10 साल में और क्या जो है उपलब्धियां हुई हैं, इसको जो है हाईलाइट किया जाए। यही जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मेन मकसद है। तो एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पिछले 10 साल में जो है क्या क्या जो है काम जो है इस संबंध में किए हैं, उसको जो है मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। आपके कोई भी सवालात हैं तो सवालात को जो है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी जी हैं और मैं भी हूं, और उसको जो है जवाब देंगे। तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। विजिबल है सर? Slide visible? Yes, thank you. Yes sir, visible. Yes, thank you. Yes. How it was originated, you may all be knowing that our Honorable Prime Minister, during his address to the UN General Assembly on September 27th, 2014, he requested the United Nations General Assembly to make yoga as one of the international day. So acceding to his request, on 11th of December 2014, the United Nations General Assembly declared June 21st as the International Day of Yoga. And since 2015, June 21st, 2015, it is being observed throughout the world. And this has given a diplomatic victory to India, and global yoga was started recognizing globally. How this International Day of Yoga is being celebrated throughout the world? First, it is done by a harmonious 45 minutes yoga demonstration called Common Yoga Protocol. Videos of Common Yoga Protocol demonstrations are already available on YouTube in 22 Indian languages, 6 UN languages, and 9 other foreign languages. हर साल हर दिन हर साल जो है विभिन्न जो है थीम्स पर जो है विभिन्न जो है जगहों पे से जो है मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू के जो है हर साल जो है इसकी शुरुआत जो है 2015 में कर्तव्य पार्क जो इंडिया के दिल्ली के हैं वहां से शुरुआत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, और ये कई जगहों पे जो है किया जा रहा है। और पिछले साल जबलपुर में भी हुआ, और साथ जो है यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में भी जो है खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद थे। और इस साल जो है ये श्रीनगर में जो है सुबह आज हुआ था, और इसमें खुद जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जो है भाग लिए हैं, और हमारे जो है आयुष मंत्री भी जो है उसमें जो है शामिल है, और हमारे आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी जो है इसमें वहां पर जो है आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। हर साल जो है विभिन्न जो है थीम पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो है शुरू से इसका जो है थीम हार्मोनी फॉर पीस था। उसके बाद उसके अगले साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे उसको जो है प्राप्त करने की जो है कैसे प्राप्त किया जाए, उसके थ्रू योगा के थ्रू माध्यम से कैसे किया जाए। 17 में जो है स्वास्थ्य को जो है थीम बनाया गया था। फिर 18 में जो है शांति कैसे जो है प्राप्त की जा सकती है योगा के थ्रू। 19 में योगा फॉर हार्ट के थीम पे मनाया गया था। 20 में योगा एट होम, योगा विद फैमिली, और 21 में योगा फॉर वेलनेस। ये दोनों साल जो है क्योंकि कोविड की महामारी थी उस वक्त जो है ऑनलाइन ही जो है किया गया था। फिर 22 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और फिर 23 में योगा फॉर वसुधैव कुटुंबम, वर्ल्ड इज वन फैमिली के जो है थीम पर जो है किया गया था। अब इस साल जो है योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी के जो है थीम पर जो है किया जा रहा है। शुरू से अगर आप इसकी जो है अगर गतिविधियां अगर देखेंगे
तो शुरू दिन से जो है जिस साल 2015 से शुरू किया गया था, उस वक्त जो है 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ये शामिल थे योगा के जो है कार्यक्रम को लेके। एक तो जो है एट ए टाइम जो है फुटफॉल 35,000 से ज्यादा लोग 84 जो है नेशनलिटीज के जो है लोग भाग लिए थे। और फिर जो है योगा एम्बेसडर्स टूर कोलैबोरेशन विद केरला टूरिज्म with participants from 22 countries during 4th International Day of Yoga in 2018. फिर My Life, My Yoga वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट रखा गया था 20 में। इसमें 130 कंट्रीज शामिल हिस्सा लिए थे, 44,000 लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे। इसी तरह भुवन योगा ऐप डेवलप किया गया था, जिसके जरिए जो भी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 21 में वही ब्रेक योगा ब्रेक इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर जो लॉन्च किया गया था। 21 से जो है हर कार्यशालय में जो है सरकारी कार्यशालय में योगा ब्रेक जो है किया जा रहा है हर दिन। इसके अलावा लॉन्च ऑफ योगा ब्रेक, नमस्ते योगा, WHO यम योगा पोर्टल्स की जो है शुरुआत जो है 21 में जो है शुरू हुई थी। 22 में स्टार्टअप योगा चैलेंज शुरू किया गया था। इसके बाद 22 में फिजिकल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2 साल के बाद जो है महामारी के बाद जो है ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें 75 आइकॉनिक साइट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है योगा का कार्यक्रम जो है हुआ था। सूर्य नमस्कार फॉर वाइटलिटी 75 lakhs ऑन मकर संक्रांति 2022 भी किया गया था। इसके अलावा 100 डे काउंटडाउन योगा एक्टिविटीज, 100 आइकॉनिक लोकेशंस बाय 100 ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक जो है रिकॉर्ड जो है कायम किया गया था। इसी तरह लॉन्च ऑफ मैसिव प्रोग्राम्स ऑन माय गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया, DD एंड CSCs में जो है इन प्रोग्राम का जो है ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। Global Yoga Ring, 24-hour relay program of IDOI activities across the globe, linked with Honorable PM's One Sun One Earth campaign जो 2022 में हुआ था। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है आइकॉनिक लोकेशंस ग्लोबली, जो आइकॉनिक लोकेशंस होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस हो, या जो है पेरिस का एफिल टावर हो, या ब्राजील का जो है कैथेड्रल ऑफ ब्रासिला, to the Dead Sea of Israel and base of Mount Everest। इस तरह की जो है आइकॉनिक लोकेशंस पे जो है एट ए टाइम जो है योगा का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi led yoga from the North Lawns at the United Nations headquarters in New York, America, where participants from more than 135 countries joined to show their commitment towards yoga, which was happened in 2023. And the main national event in Jabalpur, Madhya Pradesh, saw over 15,000 participants demonstrating the common yoga protocol in the presence of Vice President Shri Jagdeep Dhankar ji in 2023. इसी तरह Ocean Ring of Yoga saw Navy personnel from 19 ships across 34 countries participated during International Day of Yoga in 2023. This was also one of its first of its kind. इसके बाद हर आंगन योगा कैंपेन, योगा सेशंस फ्रॉम पंचायत, आंगनवाड़ीज, centers and schools during International Day of Yoga 2023. इसी तरह Indian Armed Forces created the Yoga Bharatmala and the coastal demonstrations were termed Yoga Sagarmala. ये 2023 में जो है किया गया। योगा फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिका ड्यूरिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये पिछले साल जो है किया गया था। और 23 crore people world over participated during the last year's International Day of Yoga. If you see from 2015 till last year 2023, this is a steady increase in the people's participation। एक तरह का जो है जन आंदोलन जो है पीपल्स कैंपेन, पीपल्स मूवमेंट जो है बन गया है। जून 21 हर साल जो है जून 21 जो है जन भागीदारी जो है इसमें जो है देखने को मिलती है। सारे सिर्फ देश ही से लेके जो है ग्लोबली जो है लोग जो है उल्लास के साथ जो है पार्टिसिपेट जो है करने को जो है
ये सब जो है ऐप के थ्रू जो है कितने लोग क्या किए हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, इसका भी जो है रिकॉर्ड जो है वो है। और हम देख रहे हैं कि जो है इसकी तादाद जो है वो 23.44 करोड़ तक जो है पिछले साल तक हुई थी। अब इस साल भी जो है उससे ज्यादा की जो है उम्मीद की जा रही है। योगा विद फैमिली वीडियो कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ आयुष की तरफ से जो है आयोजन किया गया था थ्रू माई गवर्नमेंट पोर्टल एंड माई भारत पोर्टल to raise awareness about yoga and to inspire people to prepare for and become active participants in the observation of the International Day of Yoga 2024. Families to record up to 1 minute harmonious yoga demonstration, short video spots. It's launched at my government portal. ये इस साल जो है शुरू किया गया है। और इसी तरह योगा टेक चैलेंज with the aim of identifying and supporting innovators, startups, companies or individuals who have created products such as devices, software, and accessories related to yoga is also launched at my government portal and my Bharat portal. Yoga in space with the support of our Indian Space Research Organization, a unique initiative called Yoga in Space will be organized in the upcoming International Day of Yoga. Wherein all ISRO scientists and officers will perform common yoga protocol on this day. That has been completed now by this time, and the Gaganyaan project team is also participating in this year's International Day of Yoga. इसके अलावा जो है भारत सरकार ने जो है इसको योगा को जो है एज ए स्पोर्ट्स जो है मतलब शामिल किया है, और इसकी जो है सुपर लीग भी जो है ऑर्गेनाइज कर रही है। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर योगा 2024, the process for the Prime Minister's Award for Yoga 2024 has already been initiated through my government and my Bharat portal. इसके अलावा promotion through my Bharat portal of the Department of Youth Affairs, Youth Affairs की मिनिस्ट्री के थ्रू जो है इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा इस साल जो है लॉन्च ऑफ प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक अबाउट योगा एंड लॉन्च ऑफ कॉमन योगा प्रोटोकॉल इन ब्रेल फॉर द ब्लाइंड, ये भी इस साल जो है किया गया था। ये प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक जो है बच्चों में जो है बहुत ही जो है पॉपुलर है, और इसका जो है उपयोग है वो जो है काफी कर रहे हैं। As far as stakeholders, the Ministry of Ayush to partner various industries, bodies, associations like ASSOCHAM, FICCI, Confederation of Indian Industry, PhD Chamber of Commerce and Industry, along with premier yoga organizations and research institutes to observe the International Day of Yoga. इसके अलावा योगा क्विज, योगा जिंगल्स, योगा प्लेज are also launched at my government and my Bharat portal. Exhibitions at exhibition at main event of IDY जो श्रीनगर में जो अब हो रहा है, वहाँ जो है आयोजन किया गया है। और campaign through common service centers, IDY celebration all across India and different parts of the world with common yoga protocol demonstration. Ministry of Ayush has also initiated advised active participation of state and union territory governments, Gram Panchayats, National Ayush Mission for this grand event. इसके अलावा promotion and the propagation of yoga in airport, announcements on boarding pass, etc. at IRC, ATC portal and in railways, in-train informative announcements in Vande Bharat train about International Day of Yoga, etc. is also being carried out. इसके अलावा IDY 2024 countdown activities जो पिछले 100 दिन से जो है चला आ रहा है 100 cities में और by 100 different organizations. 100 days to IDY was organized at Gyan Bhavan. इसका जो लॉन्च प्रोग्राम जो है वो ज्ञान भवन में हुआ था 13 मार्च 2024 को। फिर 75 डेज का जो है वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड पुणे में हुआ था महाराष्ट्र में ऑन 7 अप्रैल। और इस तरह 50 डेज काउंटडाउन एक्टिविटीज जो है सूरत में हुआ था 2 मई को, और 25 डेज काउंटडाउन एक्टिविटीज जो है वो हुआ था बिहार में 27 मई को। तो इस तरह से सारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी अंडरटेकन IDY रिलेटेड एक्टिविटीज इन देयर respective ministries and departments. Dissemination of call for application of Prime Minister's Awards for Yoga 2024 are being done with support of Department of Higher Education, UGC, Ministry of External Affairs, Indian Council for Cultural Relations, Autonomous Bodies of Ayush,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस तरह से जो है कई जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इन अवार्ड जो है हम जो है आमंत्रित कर रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन जो आयुष का एक जो है इंटीग्रल पार्ट है, ये भी जो है बढ़ चढ़कर जो है कई पिछले 10 साल से जो है हम जो है भाग ले रहे हैं। और हमारे सारे जो 23 पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे आज सुबह जो है प्रधानमंत्री के आदेश पे जो सारे जगह जो है योगा का जो है डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और अवेयरनेस लेक्चर्स पब्लिक को जो है किया गया था। उसका आयोजन जो है सारे अपने 23 पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स में जो है कराए गए थे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग योगा सेशंस ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल, नॉट ओनली ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बट एज वेल एज ऑन नॉर्मल डेज। अभी सिलचर आसाम में हमारी जो है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे जो है हर दिन जो है जो भी पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं उनको एक क्लास जो है रेगुलरली डेली बेसिस पे जो है हम जो है कंडक्ट करा रहे हैं। और आगे हम यही प्रैक्टिस जो है अपने सारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स में जो है एप्लीकेट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैं भी कर रहा था कि इनकॉर्पोरेटिंग योगा प्रैक्टिसेस इन पेशेंट केयर, contributing in the organization of IDY events under the supervision of Ministry of Ayush। हमारे ऑफिसर जो है के जेर निगरानी में जो है कई जगह जो है IDY इवेंट्स जो है आज जो है दिल्ली में जो है वो दिल्ली में हुए थे कई पार्क्स में। And CCRM officers were part of the organizing team of the first IDY celebration and other IDY events over the last decade. CCRM has also managed IDY events at different locations of Delhi, designated the Ministry of Ayush. तो इसके साथ मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों को जो है तहे दिल से जो है वेलकम करता हूँ और जो है I express my sincere gratitude to all our distinguished speaker and experts as well as to our media friends for joining with us, and I also thank all my CCRM officers as well as my colleagues from different peripheral institutes who are joining online with me in observing the International Day of Yoga 2023. Thank you very much. Jai Hind, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Yeah. थैंक यू। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉक में सर बताया कि हमने पिछले 10 साल में क्या क्या अचीव किया, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे पर ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। बच्चों को भी हमने इसमें लूप में किया और यंग एज के लोगों को, एडोलेसेंट्स को, एल्डरली को, विमेन के लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दैट स्नैपशॉट। अब हमारे एस्टीम गेस्ट डॉक्टर ईश्वर रेड्डी जी हमारे साथ हैं। सर आपका फिर से स्वागत है और अब हम आपको सुनना चाहेंगे क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस। मैं फिर बताना चाहूँगी कि सर जब डायरेक्टर MD&IY थे तो IDY का ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर सर ही ने किया, सर के नेतृत्व में होता था। सर प्लीज। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय डायरेक्टर जनरल यूनानी मेडिसिन, सेंट्रल रिसर्च काउंसिल फॉर यूनानी मेडिसिन और हमारा परम मित्र डॉक्टर जय साहब और गजाला जी, और यहाँ ऑनलाइन से जुड़े हुए और काउंसिल से जुड़े हुए सारे मेरे आयुष के परिवार और पत्रकार मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छी ढंग से विस्तार रूप से माननीय डीजी साहब ने समझाया। मैं 3 चीजें यहाँ बताकर मैं आगे आपके प्रश्न जो है उसको आंसर करने का, क्योंकि बहुत सारे विषय जो इनिशिएट हुआ है गवर्नमेंट तरफ से ये बताया गया, लेकिन मैं एज ए 10 साल से मैं इस एक मिशन मोड में हमने काम किया, उससे जुड़े हुए हमने उसको मैंने क्या देखा अंदर से और बाहर से। मैंने देखा है कि ये 2014 में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री 27 सितंबर 2014 में जो UN जनरल असेंबली में अनुरोध किया था, उसके बाद हर चीज़ें हमने वो साइटेशन हो जो उसका डिक्लेयर करने के बाद काम हो उससे जुड़े हुए कि वो तब से मैं आज 10 साल के बाद पीछे मुड़कर देखा तो ये मास मूवमेंट बन गया।
जब हम बचपन में योग चालू किए थे तब हमने प्रोफेशन बने थे 70s 80s में, तब हमने हाफ पैंट शर्ट टी शर्ट पहनकर गांव जाकर स्कूल में जाकर योगा डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को प्रोत्साहित करते थे। हॉस्टल, कॉलेजेस, यूथ क्लब्स जाकर बहुत हमने उनको रिक्वेस्ट करते थे हमें योगा करने के लिए, थोड़ा अवकाश दीजिए, योग कीजिए। ऐसे हमने बहुत सारे कदमें उठे हैं हमने शुरुआत में, 4 या 5 दशक की बात कर रहा हूँ मैं, बचपन से। सो नियरली 4 years ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस में वहाँ देखा हूँ। लेकिन आजकल लोग हमारे पीछे पड़ गए, पीपल आर बिहाइंड अस टू लर्न योगा। दिस इज द ये पैराडिग्मिक शिफ्ट हो गया है कि लोग आपको योग को जानते हैं। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार की या भारत सरकार की नेतृत्व करते हुए किया, लेकिन उसके पीछे पिछले 5-6 दशक से योग गुरुओं ने विश्व भर पर जो अपना पद्धतियों को फैलाया, योग का प्रचार किया, विशेष तौर पर हेल्थ एंड वेलनेस पर। मैं इस पर अनुरोध करता हूं कि जब योग प्रारंभ हुआ था कोई धर्म नहीं था वहाँ, योग इज बियॉन्ड रिलीजन। हमने इसको एक विज्ञान के रूप में लेना चाहिए, एक आर्ट के रूप में लेना चाहिए, लेकिन कोई उसके धर्म से संबंध नहीं होता है। क्योंकि जब योग प्रारंभ हुआ था कोई धर्म है ही नहीं था हमारे पास, सिविलाइजेशन के साथ चालू हुआ है। इसलिए मैं हमेशा इस पर जोर देता हूं कि इसलिए एक मास मूवमेंट इसलिए बना कि हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर, हर देश के आदमी उसको अपनाते हैं कि नाउ इट इज जस्ट लाइक ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स। योग एक विज्ञान के रूप से लोग ने उसको लेने लगा है। दैट इज द चेंज। और दूसरा है कि भारत सरकार ने अच्छे कदम लिया कि हमने कोई नहीं छोड़ा वर्दियों के लिए, स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल और रिसर्च में वहाँ भी इंट्रोड्यूस किया है। यूनिफॉर्म पर्सन्स को, क्या आशा, आंगनवाड़ी, हर जगह में हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है कि हर रोज कुछ तो कुछ हमने, लास्ट में योगा ब्रेक एक प्रोटोकॉल भी लाया वर्क प्लेस में। अब कुछ नहीं कर पाते, दिन में 2 बार हमारा 2-4 आसन हमने बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइन किया, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा योग का प्रति हमारा बढ़ा, क्योंकि हर रोज योग करते हैं उसको लाभ होता है। योग के बारे में पढ़ना, सोचना, उससे लाभ नहीं होता, योगा इज अ साधन। इसलिए आजकल लोग उसको यूट्यूब में हो, जो भी हो वो भी कर लिया। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके हिसाब से रोजगार की बात आती है और हमारा हेल्थ बजट कमी की बात आती है, कहाँ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमने 1.57 जो वेलनेस सेंटर्स है आयुष्मान भारत में, वहाँ भी हर सेंटर में योगा इंस्ट्रक्टर पर नियुक्ति हो रही है, स्कूलों में, कॉलेजेस में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्राइवेट है, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स कहते हैं, वहाँ लोग ऑनलाइन, जैसे कोविड के बाद ऑनलाइन का सिलसिला चला है कि ऑनलाइन के बहुत ढंग से योग टीचर्स ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं। जो क्षमता है उसके पास क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है, इसके हिसाब से भारत सरकार ने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के नाते स्किल एंड नॉलेज के जो है उन लोगों को सर्टिफाई करके हमने योग क्षेत्र में ला रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिन में मुझे 10 से 12 लाख से ज्यादा हमें योग टीचर्स चाहिए टू टेक इट टू द विलेज लेवल। इसलिए आज इतना माहौल 10 साल में हुआ है, ये कम उपलब्धियां नहीं है, लेकिन अभी करना बहुत बाकी है। और उसमें सरकार की इच्छा है उसको गांव तक ले चले। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत के साथ साथ एक वेलनेस विषय स्तर, बाहर में यूरोप में बहुत देशों ने प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए कुछ बजट रखते हैं। ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ हमारा आयुष सिस्टम सारे करते हैं, लेकिन योग हर सिस्टम के साथ जाता है, आयुर्वेद के साथ, यूनानी के साथ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ, होम्योपैथी का सबके साथ योग का तालमेल लगता है, क्योंकि ये बॉडी एंड माइंड मेडिसिन है। इसके कारण से इसका पॉपुलैरिटी है कि हमें योग एक सेपरेटली, यूनानी वाले देख रहे हैं योग हमारा है, आयुर्वेद देखना चाहिए योग हमारा है, लेकिन हमें आने वाले दिन में एक्सपर्टाइज रिसर्च करके प्रोटोकॉल को जो हमने साइंटिफिक तरीके से लाना ये जरूरी है। इस काम में अनेक बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, और लीडिंग योगा इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ भी हमने तालमेल करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कोई आप लोगों का प्रश्न है तो हम जवाब करेंगे, और कोई भी आपका सुझाव है जरूर, सुझाव भी हम एक पॉलिसी रूप के लाते लोगों के तक पहुंचना है। विशेष तौर पर लोग उसको हर रोज योगा करें और
जो योग कोर्स करते हैं और अलग अलग प्रोफेशनल्स है उनको भी रोजगार की उपलब्धियां हो, इस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीजी साहब मुझे आमंत्रण करने के लिए। कोई प्रश्न अगर है तो मैं, क्योंकि बहुत आप अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ और बातें करने की। और लेकिन एक बता रहा हूँ, ये कॉमन योग प्रोटोकॉल हम 2015 में लाया था। आजकल ये एक मास मूवमेंट कहते हैं ना हम लोग, इट हैज बिकम ए वन ऑफ द बिगेस्ट वेलनेस मूवमेंट, वेलनेस मॉड्यूल इन द एंटायर वर्ल्ड। 27 करोड़ से ज्यादा लोग एक दिन में योगा करते हैं उस दिन। उसके अलावा मोर देन 30-40 करोड़ पीपल, मतलब 27 करोड़ मतलब 270 मिलियंस, around 30-40 crores people regularly do yoga, one or the other format, फिजिकल एक्सरसाइज हो जो भी हो। हमसे ज्यादा यूरोप में, यूएस में, चाइना में, भारत से ज्यादा वहाँ लोकप्रिय, कल संसद टीवी में पूछ रहे थे, सो हमसे भी ज्यादा वहाँ प्रोफेसर। लेकिन हम योग को जीते हैं, वो योग करते हैं, ये हमारा डिफरेंस है। भारतीय लोग योग अपने जीते हैं बिकॉज इट्स हमारा जीवन पद्धति है, हमारा संस्कृति है। लेकिन बाहर लोगों के लिए ये एक योग एक मॉडल, हाफ एन आवर 1 आवर का मॉडल है। ये डिफरेंस है। लगता है कि हम वसुधैव के कुटुंब की बात करते हैं, लोग के हमने अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। आने वाले दिन में जो जीवन पद्धति रहकर भारतीयों ने सुखी जीवन जीता है, उन्हीं को विश्व को अपनाकर एक विश्व बंधुत्व का जो संकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको आगे बढ़ाने में योग एक प्रमुख भूमिका निभा रहे। हम सभी इस मिशन में जुड़े, हम भाग्यशाली है। पिछले 10 साल से मैं आज पहली बार वो मेन प्रोग्राम में यहाँ आ गया हूँ। सो मेन प्रोग्राम करने का सौभाग्य मिला मुझे, इतना नजदीक से लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य ये योग के प्राप्त हुआ, मैं भाग्यशाली समझता हूँ। और एक बार मैं डीजी को, सारे पत्रकार बंधुओं को और मेरा आयुष के सारे साथियों को प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छी बात है कि योग विज्ञान है, योग साधना है और ये हर सिस्टम के साथ बहुत इजीली बाइंड हो सकता है और हम आपके बहुत आभारी हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे मीडिया पर्सन्स ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, वो अपना हैंड रेज करें और फिर अनम्यूट करके हम आपका नाम बोलेंगे, आप हैंड रेज करिए, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। डॉक्टर खालिद, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और आप सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल यह है कि डॉक्टर ईश्वर से कि योगा इंस्ट्रक्टर होने के नाते आप योगा टीचर हैं, लगातार योगा के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं और योगा को इस लेवल पर पहुंचाने में आपका भी एक योगदान है। तो जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल हो गया है सबका, देर तक जगना और इस तरह के जो जंक फूड्स हैं वो खाना, वो बहुत समाज में आम हो गया है। तो इन सब का वो बहुत सारी चीजें अनअवॉइडेबल हैं, जिस तरह की रूटीन हो गई है लोगों की रात तक जगने की, वो ऐसे में योगा जो है, क्या ऐसे जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस हैं उनको रोकने में कितना कामयाब है? क्या वो रोक पाएगा? और क्या अगर ऐसा रोक पाया है तो उससे संबंधित कोई रिसर्च है, डेटा है कि योगा ने कितना योगदान किया है ऐसे डिजीजेस को, लाइफ स्टाइल से संबंधित डिजीजेस को रोकने में? यस, शुरुआत बहुत अच्छा प्रश्न से प्रारंभ हुआ है। मैं उसमें योग का 3 पहलू है। हमने जब भी डायबिटिक होता है, प्री डायबिटिक कंडीशन, जो प्री डायबिटीज कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जनरलाइज योगा कराते हैं, लेकिन हमने इंडिविजुअल स्पेसिफिक और एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वभाव जो होता है उसके साथ से प्रोटोकॉल बन गए तो वहाँ अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। लेकिन हमने क्या कहते हैं कि ज़्यादातर कोई बुक है, कोई टीवी है, सोशल मीडिया में किसी ने डाल दिया, वैसे हमने कोई 2-4 एक्सरसाइज नहीं करते उसमें किया तो लाभ मिलता है। लेकिन जो स्पेसिफिक योगा प्रोटोकॉल है, जो थेरेपिस्ट और अच्छे क्वालिफाइड पर्सन तैयार करते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन तैयार करते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है प्री कंडीशंस में। जब हम डिसीज क्रॉनिक हो गया, हमें जरूर कोई भी मेडिसिन हो, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, उसको एडजंक्ट थेरेपी और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी उसके साथ जाना पड़ता है। जब अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड में हमने प्योरली योगा के, इसके हिसाब से हमने प्रिवेंटिव में बहुत रिसर्च है, रियली वन इस पर, हार्ट डिसीज पर, हाइपरटेंशन पर,
मोर देन 3000 से ज्यादा पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल रिसर्च है। अभी कैंसर पर हो रहा है कि कैंसर रिहेबिलिटेशन में हो रहा है, और डायबिटीज में भी एक मास मतलब है कि 1,56,000 लोगों के लिए एक भारत सरकार ने फंडिंग भी किया। वहां भी बहुत प्री डायबिटीज कंडीशन में 3 हफ्ते से ज्यादा, मतलब जो भी योग करते हैं कि उनका रिजल्ट मिनिमम 21 to 28 डेज, लेकिन बदलाव जो आता है कि वो 3 महीने के बाद ही आएगा। जो स्वभाव बदलता है तब होता है। क्या बदलना चाहिए? उससे आपको मन का थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, स्लीप ऑफ क्वालिटी बढ़ती है। तब हमने थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने का मन बनाते हैं। हम सब लोग चाहते हैं लाइफस्टाइल चेंज बनो, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं क्यों? तो हमारा स्वभाव है ऐसे लेट जागने का, जंक फूड खाने का, और ये सारे स्वभाव बन गया मेरा। इट इज स्वभाव बदलने में जो भी अभ्यास योग में बताए कि रिसर्च जो किया है कि 3 महीने तक, 3 हफ्ते सिखाना है, 3 महीने तक उसको आगे बढ़ाना है एज एन एक्सपर्ट और एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। जो भी मैंने देखा सर 3 महीने आप रेगुलर करो, मैं करता हूँ। अभी कोविड में मैंने 28 डेज का, 21 डेज प्लस 28 डेज का योग सिखाया एवरी डे। उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला कि जो भी क्या कि एक्सेप्ट 1% किसी मेडिकल प्रोफेशन को ये नहीं हुआ, मतलब कोविड नहीं हुआ। लोग लेकिन आधा घंटे कभी भी हफ्ताड़ में करते हैं, उस रेगुलरली नहीं करते, प्रोटोकॉल सही नहीं है और अलाइनमेंट सही ढंग से नहीं होता है, प्राणिक डीप ब्रीदिंग नहीं होती है, तब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। हमने निमांस के साथ, जिपमेर के साथ, वो डिपास के साथ बड़े बड़े संस्थान हैं, और आयुर्वेद का भी महाविद्यालय ये वाला है, इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमने जो साइंस स्टडीज किया है उसमें जरूर अच्छे में अच्छा रिजल्ट आए जरूर। लेकिन सर अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। प्री कंडीशन और कंडीशन में मेडिकेशन मैं प्रेफर करता हूँ, मेडिकेशन के साथ करें क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, और बाद में रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में योग का जरूर बहुत अच्छा योग। सर एक सा रिलेटेड से सवाल है जिससे जो हम लोगों से भी संबंधित है कि योगा और मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन योगा का ही पार्ट है, उसको योगा समझना चाहिए? ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, योग इज मेडिटेशन, योग इज मेडिटेशन। जो आपने रियल में क्या होता है आजकल, हमने फिजिकल एक्सरसाइज एक्सपेशली कुछ 1-2 दशक से आ गया तो हाथ हिलाया, ये सारे क्या योग हो गया, लेकिन दैट इज नॉट योगा। योगा इज फर्स्ट योर बॉडी अलाइनमेंट, माइंड अलाइनमेंट, टेकिंग यू टू द मेडिटेशन। ऑल प्रैक्टिसेस लीड टू मेडिटेशन। शास्त्र में क्या है? योगा समाधि, ध्यान ही योग है। हमने 1000 बार हर जगह में पहले योग बोलता है। सो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। लेकिन ध्यान होने के लिए आपने क्रिया करो, आसन करो, प्राणायाम करो, आहार विधियों को ये करो, तब ध्यान होता है। अदरवाइज ध्यान आपने आंखें बंद कर दिया, पूरा भ्रमण करते, वो ध्यान नहीं है। सो इसलिए ध्यान ही योग है। लेकिन क्या होता है कि मेडिटेशन और ध्यान डिफरेंट है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में मेडिटेशन कॉन्सेप्ट ही अलग है। उनके लिए अयंगार जी ने जब वेस्ट में योग को इंट्रोड्यूस किया था, आसन के ही वो लोग योग समझने लगे। वहां का मेडिटेशन कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसलिए वहां के लोगों के लिए और मेडिकल लोग आज भी योग और मेडिटेशन ही कहते हैं, बट भारतीयों के लिए योग ही मेडिटेशन है, क्योंकि आसन के और प्राणायाम के बिना हम योग ध्यान नहीं कर सकते। योग इज ध्यान, इट्स अ वेरी टेक्निकल। जी साहब से डॉक्टर जहीर अहमद, उनसे मेरा सवाल है कि यूनानी प्रैक्टिस में, चूंकि आप यूनानी डीजी हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, तो यूनानी दवाओं के साथ क्या आप वाकई प्रेफर करते हैं या लोगों को सजेस्ट करते हैं, एडवाइज करते हैं कि योग भी करें? एक ऐसा कुछ प्रेस्क्रिप्शन का पार्ट है ये? अभी जैसे कि मैंने जो है मेरे प्रेजेंटेशन में कहा था कि हम एक योगा इंस्ट्रक्टर जो है वो अपॉइंट किए हैं सिलचर असम RRI। वहाँ पे डेली रूटीन है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको दवाओं के साथ साथ जो है हम योग आसनास भी जो है सिखाते हैं, और वो उनको जो है प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। चूंकि ये अभी शुरू हुआ है पिछले 1 साल में, अभी हम इसके जो है रिजल्ट्स जो है अभी आपको नहीं बता पाएंगे। आगे चल के जो है ये इसकी जो है खास हम जो है इसका ध्यान रखेंगे कि जो है कितना जो है लाभ जो है लोगों को हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। ऐसा अब इसको इस सक्सेस स्टोरी को देख के फिर हम आगे भी जो है हमारे आगे दूसरे मेजर इंस्टीट्यूट्स में भी जो है इस तरह का जो है अरेंजमेंट जो है वो करने वाले हैं आगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहीर साहब।
शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर खालिद रजा साहब। अब मैं खुर्रम साहब को, जो कि न्यूज़ 18 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें, और रिक्वेस्ट है कि ब्रीफ में पूछ लीजिएगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है। एक मीटिंग भी जाना था। डॉक्टर जहीर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जिस तरीके से लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, देर तक लोग जाग रहे हैं और बच्चों के ऊपर खासतौर से उनकी आंखों पर, उनकी फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कतें पैदा हुई हैं, बहुत सारी चश्मे लग रहे हैं, आइज में दिक्कत आ रही है, तो कैसे यूनानी योगा को अकोमोडेट कर रहा है अपने साथ, और ये जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसमें उसको लेकर यूनानी में किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है और किस तरीके से यूनानी रिसर्च आगे आ रही है? शुक्रिया खुर्रम साहब। अभी हमारे पास जो है डी एडिक्शन के लिए सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं कि उसके लिए जो है कंप्लीट एक मैनुअल जो है बनाया जाए, तो वो जो है हम करवा रहे हैं। हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो है प्रिवेंशन एज वेल एज जो है डिजीज ट्रीटमेंट के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड असबाब सित्ते ज़रूरिया, 6 एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो है सिर्फ इसमें खाने पीने की जो है कुछ जो है डूज एंड डोंट्स हैं, एनवायरनमेंट के ताल्लुक से जो स्ट्रेस किया गया है, फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड रेस्ट का इम्पोर्टेंस है इसमें, फिर साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस एंड रेस्ट का है इसमें, स्लीप एंड अवेकफुलनेस है, और जो बॉडी फ्लूइड्स रिटेन होना है और जो बॉडी फ्लूइड्स जो है एक्सपेल होना है, इन 6 जो है हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है हम अपने जो है मैनुअल में शामिल कर रहे हैं, और ये जो मैनुअल बन रहा है डी एडिक्शन के लिए, जिसमें जो है सब सारे डी एडिक्शन आ रहे हैं इसमें, न सिर्फ जो है अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, अपार्ट फ्रॉम दैट जो है डिजिटल जो एडिक्शन है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम जो है अपना मैनुअल बना रहे हैं, जिसमें हम इस असबाब सित्ते ज़रूरिया के कॉन्सेप्ट को जो है शामिल करा रहे हैं। And once if people following these basic 6 essential requisites and we place yoga into this, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर बसव रेड्डी जी ने कहा, सबका योगा सबका है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मेंटल एक्सरसाइजेस एंड रेस्ट, जिसमें मेडिटेशन भी शामिल है। तो हम योगा को इसी में इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप योगा को जो है अडॉप्ट कीजिए, योगा को प्रैक्टिस कीजिए, योगा के जो है अवेयरनेस लाइए। तो ये सारी चीजें जो है हम योगा को भी इसमें जो है पार्ट एंड पार्सल बना लिए हैं ऑलरेडी। तो हम इस मैनुअल को जो है हम मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे, तो फिर वंस मिनिस्ट्री जो है उसको अप्लाई करने के बाद वो सारे आयुष के जो भी जो है गाइडलाइंस है वो जो है लोगों तक जो है पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, बस मेरा एक सजेशन है। हाँ बताइए। एक्चुअली हमारे आयुर्वेद और यूनानी दोनों मिलकर जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हमारी न्यू जनरेशन के लिए, उनकी आइज खराब हो रही हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, योगा को अकोमोडेट करके मेडिसिन के थ्रू कोई ऐसा आप लोग चार्ट प्लान लेकर आए या कोई चार्टर लेकर आए जिससे इससे प्रिकॉशन हो सके। आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, उम्मीद है, और ऐसा कुछ लेकर आ रहे होंगे। बिल्कुल, सरकार की खुद पॉलिसी है जो अभी बन रही है, इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी 2023, अभी ड्राफ्ट है, चल रहा है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इनटू मेनस्ट्रीम हेल्थ केयर इन एरियाज ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ एट पेरिफेरल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब इंटीग्रेट होने के लिए हर सिस्टम को जो है अपने गुड प्रैक्टिसेस, अपने गुड एविडेंसेस जो है वो देने पड़ेंगे। जो बीच में बोलने के माफी चाहूंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बसव रेड्डी जी कह रहे हैं कि वो उनको एक मीटिंग में जाना है, तो हम जरा उनसे सुन लें उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि बताया था और हमारी ये हाफ एन आवर की थी, अब 11:45 हो गए। तो बसव रेड्डी जी आप। Thank you. Any questions related to me? I will answer and go. Any question, cute questions है तो पूछिए, मैं जरूर। एक क्वेश्चन हमारे कंसल्टेंट ने व्हाट्सएप किया है
उन्होंने उनके पास ये क्वेश्चन आया है कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए जानना चाहते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी जो यंगर जनरेशन है काफ़ी स्कोप देखती है योगा पद्धति में। तो अगर आप जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए बता दें हमारी यंग पीढ़ी को कि क्या है, क्या कोर्सेज वो कर सकते हैं। यस, मैं अभी इसमें 3 चीजें करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सरकार नौकरी चाहिए, लेकिन मैं अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सरकार को नौकरी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, स्किल्ड मैन पावर तैयार करे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। नौकरी आप अपने आप को अपने स्किल के हिसाब से अपने क्षमता के अनुसार प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो मिलना चाहिए। सो इसलिए पिछले कुछ दिनों में अनेक कोर्सेज चला रहे हैं ना, अनेक विश्वविद्यालय और इवन भारत सरकार के मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट में हमने स्किल्स कोर्सेज 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का स्किल कोर्सेज चालू किया। योग सर्टिफिकेशन के जरिए हमने योग उनको स्किल एंड नॉलेज के हिसाब से इसको ये वाला करता है। दूसरा, अभी जब वेलनेस सेंटर्स में 1.57 लाख जॉब क्रिएट हो गया और हर यूथ क्लब में, हर में स्कूलों में सब लोग हो रहा है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं रिटायर्ड होने के बाद देख रहा हूँ कि मैं खुद कंपटीशन में आ गया हूँ कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। एक क्लास में 800 रुपए से 1200 रुपए लेते हैं ऑनलाइन। यहाँ बैठकर मैं दिल्ली में, आज मैं कर्नाटक के एक रिमोट एरिया में हूँ, एक बड़ा कैंप चल रहा है, यहाँ से मैं आज बहुत देश विदेश से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना क्लास दे रहा हूँ। सो आजकल ऑनलाइन मोड में बहुत सारे बच्चे दिन में 1-2 क्लास करके अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। सो आने वाले दिन में हमें क्वालिटी और लाने, तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस को और भी जिम्मेदारी के साथ और भी तगड़ा करके उनको ये क्वालिफाइड लोग ही योग सिखाए, क्योंकि लोगों का लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, रिस्क फैक्टर भी होते, योग सही ढंग से नहीं किया तो। तब हमने ये क्वालिफाइड लोगों को हमने अभी सर्टिफिकेशन बोर्ड्स में लगाएंगे जरूर। सो ये आदमी ये अभ्यास को सिखा सकते हैं। डायबिटीज स्पेशलिस्ट को डायबिटीज स्पेशलाइज्ड टीचर ही चाहिए। सो ऐसे हमने एक व्यवस्था लाएंगे तो पब्लिक हेल्थ भी हमारा जो हो जाएगा, देन इट विल बी ए वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम दैट। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज को कोई कमी नहीं। मैंने कहा कि एज पर माई personal assessment, we need minimum 10 lakhs to 12 lakh yoga teachers or trainers to take it yoga to the grassroots level, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है। सो इसलिए उस कार्यक्षमता में आने वाले 5 साल या उसमें कम समय में इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे मीडिया पर्संस हैं वो अपने क्वेश्चन जो हैं हमारे सोशल मीडिया कंसल्टेंट से शेयर कर लें, इसका जवाब हम आपको दे देंगे। हमारे दोनों अतिथिगण को आज, क्योंकि IDY है, आप सब जानते हैं 21 जून है, जाना है, तो आप लोगों का ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सोशल मीडिया कंसल्टेंट से कि आप लोगों के सवाल ले लें, जिनका जवाब हम आपको तुरंत दे देंगे। और हमारी प्रेस इसके हिसाब से आपसे शेयर कर ली जाएगी बैकग्राउंड नोट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इस और हमारे का और आप सर आपका, तो हमारे DG सर आप बोलना चाहेंगे सर, या मैं कंक्लूड कर दूं? बस एक रिक्वेस्ट है हमारे मीडिया फ्रेंड्स से कि आयुष मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जो है जारी की है, इसको जो है आप जैसे जो लैंग्वेज में चाहे उसमें जो है उसको ट्रांसलेट करके जो है बराए मेहरबानी जो है उसको जो है पब्लिक तक जो है ले जाए। यही मेरी जो है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और सर सभी को यस सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पे बाकी सबको धन्यवाद देते हुए ये टेक अवे मैसेज देना चाहूंगी कि योग के गुणों से अपने शरीर, मन और आत्मा को मजबूत बनाइए, स्वयं और समाज के लिए योग अपनाएं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। म्यूट कर दूं फिलहाल, म्यूट। हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए चलेंगे। हाँ, यहाँ से सीधा प्लीज योगा ट्यूटर्स हैं, चले जाएंगे, हमारी क्लास लेंगे। तो ये कहाँ है? ऐसा वो बना नीचे है ना, नीचे ग्राउंड में है।